إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر محترم حاضرین جمعہ، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اتنی تیزی سے یہ 12 رمضان یا 11 رمضان ہم سے گزر گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ کل یا پرسوں ہم نے رمضان کا استقبال کیا، لیکن 10 سے 11 اور 12 دن گزر گئے۔ اتنی تیزی سے ایام کا گزرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہیں ہو جائے گا، تیزی سے گزرنے نہیں لگے گا۔ آپ دیکھیں کہ سال ایسے گزر جاتا ہے جیسے ابھی مہینہ گزرا ہوا ہے، مہینہ ایسے گزرتا ہے ایسا لگ رہا ہے ایک ہفتہ گزرا ہوا ہے، اور ہفتہ ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے ایک دن گزرتا ہے، اور ایک دن ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے۔ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اور یہی حقیقت بھی ہے۔
ہم لوگ کہتے ہیں ابھی کل یہ کام ہوا تھا، حالانکہ کل نہیں، وہ 10 دن پہلے ہوا تھا۔ تو زمانہ اتنی تیزی سے کے ساتھ گزر رہا ہے، گویا کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت ہم سے بہت قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ منافقین قیامت کو سمجھتے ہیں بہت دور ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں قیامت بہت قریب ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ زمانے کا تیزی کے ساتھ گزرنا، وقت میں برکت نہ ہونا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی گئے سال کی رمضان کی میموری آپ کے پورے ذہن میں گھوم رہی ہوگی، گردش کر رہی ہوگی، آپ کے ذہن کے اسکرین پر ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی۔ ابھی تو کل مہینہ ہوا نہیں رمضان گزرا، لیکن یہاں دیکھیے رمضان پھر سے ختم ہونے والا ہے، رمضان پھر سے ہم کو چھوڑ کر دور جانے والا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، ہم ہیں کہ رمضان کی ہم کو کوئی قدر نہیں ہے، ہم ہیں کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا نہیں رہے ہیں۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے الا ان الشہر قد انتقص، اے لوگو رمضان کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں، رمضان کے ایام ہم سے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، تم لوگ عمل میں عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ اور اضافہ کر لو، جیسے جیسے رمضان ختم ہو ویسے ہم کو عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارا حال اس کے برعکس ہے۔ ہم رمضان کے 2-4 ایام میں، شروع کے 2-4 روزوں میں ہم کثرت سے ذرا تلاوت کر لیتے ہیں، نفل نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں، قیام اللیل زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہفتہ گزرتا ہے یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، جیسے ہی پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے ایک صف بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی ہے، قیام اللیل نماز تراویح شروع ہوتی ہے ایک صف بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آخر ہم کون سے رمضان کی قدر کر رہے ہیں؟ ہم کیسے رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیسے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن کے اندر ہم سمیٹ رہے ہیں؟ مجھے بتلائیے تو ذرا صحیح۔ آپ عشرہ ختم نہیں ہوا مسجدیں خالی ہو گئیں، عشرہ ختم نہیں ہوا کسی کے ہاتھ میں مصحف نہیں دکھتا ہے، کسی کے ہاتھ میں قرآن نہیں دکھتا ہے، کسی کی زبان پر قرآن کا ورد نہیں ہوتا ہے۔ آخر رمضان کی ہم قدر کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ الا ان الشہر قد انتقص، اے لوگو رمضان کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں، دن گھٹتے جا رہے ہیں، دن کم ہوتے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے جا رہا ہے، لہذا اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو، اپنی عبادتوں میں اضافہ کر لو، اپنی تلاوت میں اضافہ کر لو، نوافل میں اضافہ کر لو، اذکار میں اضافہ کر لو، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جاؤ، ورنہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اگر اس ہم رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال نہیں کر سکے تو سمجھ لیجئے ہم اللہ کی نگاہ میں محروم اور بدنصیب اور بدبخت لوگ کہلا جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ادرک رمضان، جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے، جو شخص رمضان کے مہینے میں داخل ہو کر کے بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہ کروا لے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَدَخَلَ النَّارِ، وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، جو اس مہینے کی برکت اور رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرواتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہیں کروا لیتا ہے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، ایسے انسان کو رب العالمین اپنے جنت سے دور کر دیتا ہے، ایسا انسان جہنم کے گڑھے کے قریب چلا جاتا ہے۔ جو رمضان کا مہینہ پا کر کے رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی سعادتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین نے بد دعا کی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کو نہ دھو پائے، تو اللہ اس شخص کو جہنم میں داخل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اور اس پر قبولیت کی مہر لگانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہاں ایسا انسان نامراد ہوگا، ایسا انسان ناکام ہوگا، ایسا انسان اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگا، ایسا انسان اللہ کے دیدار سے دور ہوگا جو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے۔
कितनी फिक्र है हम लोगों को, कितनी फिक्र है हम लोगों अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कराने की, कितनी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, कितनी हम कोशिश कर रहे हैं अपने गुनाहों को माफ कराने की। कोई चेंजिंग नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में रमजान का महीना आने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई नयापन नहीं है उनकी जिंदगी में। जैसे 11 महीने में जिंदगी गुजारते थे, रमजान का महीना पा करके भी वो उसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी तरह गांव और उसी तरह गलियों में बाजारों में फिर रहे हैं। उनको मस्जिदें नहीं याद आती, उनको मस्जिदें नहीं दिखाई देती, अल्लाह का घर आबाद करने की फिक्र नहीं होती। जब यही घर अल्लाह का घर मस्जिद टूटती है कहीं गैर दुश्मनों के हाथे, तो वावेला मचाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि फला जगह मस्जिदें तोड़ दी गई। आखिर मस्जिदें वीरान रहेंगी तो तोड़ी नहीं जाएंगी तो क्या और क्या होगा उसका। मस्जिदें जब तक आबाद नहीं होंगी, मस्जिदें जब तक वीरान रहेंगी, ये समझ लीजिए वो मस्जिद इस जमीन पर कायम नहीं रह सकती। क्या ये खंडरात है मस्जिद? क्या ये सिनेमा हॉल है मस्जिद? क्या ये म्यूजियम है मस्जिद? नहीं, ये मस्जिद वो घर है अल्लाह का, वो महबूब घर है जिसमें नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जिसमें अल्लाह को याद किया जाता है। अगर उस मस्जिद में, उस दरो दीवार के अंदर नमाजें न पढ़ी जाती हो, कुरान की तिलावत ना की जाती हो, अल्लाह का जिक्र ना किया जाता हो, वो मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। जब वीरान हो जाएंगे तो इस धरती पर मस्जिदें नहीं रहेंगी। ऐसे ही नहीं मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे ही नहीं मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप भी अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, अगर आप भी अपनी मस्जिदों को वक्त नहीं देंगे, अल्लाह की कसम वो दूर नहीं कि इस रुए जमीन पर से मस्जिदों को नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आखिर हमको क्यों फिक्र नहीं है मस्जिदों की, अल्लाह के घरों की? हम अपने घरों की इतनी फिक्र करते हैं, इतना बनाते हैं, संवारते हैं, नक्शो निगार करते हैं। अल्लाह के घर को नक्शो निगार करने की जरूरत नहीं। अल्लाह के घर को बनाना संवारना यही है कि उस मस्जिद का हक अदा किया जाए। मस्जिद का हक क्या है? उसमें नमाज पढ़ी जाए, उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह के शायर को बुलंद किया जाए। यही मस्जिद को बनाना है, यही मस्जिद को संवारना है, यही मस्जिद का नक्शो निगार है, यही मस्जिद की खूबसूरती है कि मस्जिदों का दामन भरा रहे, मस्जिदें खाली न रहे। यही मस्जिद की खूबसूरती है। सिर्फ आलीशान मस्जिद बना लेना, खूबसूरत मस्जिद बना लेना, उसमें तरह तरह की लाइट और कुमकुमे लगा लेना, मस्जिदों को पेंट करा देना, मस्जिदों को खूबसूरत बना देना, यह मस्जिद का हक नहीं अदा करना है। मस्जिद का हक अदा करना चाहे तो नमाजें पढ़ो मस्जिद के अंदर, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, अल्लाह के अज़कार पाबंदी के साथ इस मस्जिद में किया करो। मस्जिदें जब तक भरी रहेंगी तब तक मस्जिदें आबाद रहेंगी, और जब मस्जिदें खाली हो जाएंगी तो ये मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। दरअसल मेरा उन्वान ये नहीं है मस्जिदों की अहमियत और फजीलत। मैं दरअसल ये बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि रमजान का महीना तेजी के साथ हमसे गुजर रहा है, लिहाजा अपनी इबादतों में इजाफा कर लो, अपनी इबादतों को और बढ़ा लो। अगर आप 2 रकात 4 रकात नफिल की पाबंदी करते थे तो उसको 6 और 8 कर लो। अगर आप आधे पारे की तिलावत करते थे तो 1 पारा से 1.5 पारा कर लो आप। और अगर सदकात और खैरात में आप हिस्सा लेते थे तो और उसमें इजाफा कर लो। ये रमजान तेजी के साथ गुजर रहा है, फिर ये मौका हमको नहीं मिलेगा। अगले साल कौन जिंदा रहेगा, किसकी सांसें चलेंगी, इस बात की गारंटी ना तो मैं ले सकता हूं ना आप ले सकते हैं। लिहाजा कदर कर लो इस महीने की, इस महीने की इज्जत कर लो, इस महीने के एहतराम और तकद्दुस को बाकी रखो, इस महीने की हुर्मत और तकद्दुस को पामाल ना करो, वरना तुम्हारी हुर्मत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा एहतराम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा तकद्दुस मलिया मेट हो जाएगा। अगर इस महीने के तकद्दुस को तुमने बरकरार नहीं रखा तो ये महीना है, ये महीना है, इस महीने की कदर कर लो। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मुसलमानों, इस महीने की कदर करो, इस महीने का एहतराम करो, इसमें अपने आप को गुनाहों से बाज रखो, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करो। हाज़िरीन गिरामी,
इससे कबल हमने रोज़ेदारों के लिए बशारतें क्या हैं, रोज़ेदारों के लिए इनामात क्या हैं दुनिया और आखिरत में, इस पर हमने रोशनी डाली थी। आज का मौदू मेरा माह रमज़ान, माह कुरान है। ये रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, इसी महीने में अल्लाह ने सबसे अफजल कलाम, सबसे बेहतर किताब इस महीने में नाजिल की। आखिर अल्लाह ने, आप बतलाइए, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा में क्यों अल्लाह ने नाजिल नहीं की? आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रजब में क्यों नाजिल नहीं की, मुहर्रम में क्यों नहीं नाजिल की? अल्लाह को इस महीने की अज़मत को बढ़ाना था, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस महीने के मकाम और मर्तबे को बुलंद करना था। इस बुनियाद पर अल्लाह ने रमज़ान को मकाम दिया कि इसमें कुरान नाजिल किया। रमज़ान को ये जो मकाम मिला है, रमज़ान को ये जो मर्तबा मिला है, रमज़ान को ये जो तक़द्दुस हासिल है, रमज़ान को ये जो एहतराम हासिल है, ये कुरान की वजह से है, अल्लाह के कलाम की वजह से है। अफ़ज़लुल कलाम की बुनियाद पर रमज़ान को अफ़ज़लुल शहर का मकाम मिला है। अगर हमने कुरान का हक इस महीने में अदा नहीं किया तो ये समझ लीजिए हमने रमज़ान का हक अदा नहीं किया। ये महीना कुरान का महीना है, ये महीना अल्लाह की किताब का महीना है। अल्लाह ने क्या कहा? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अल्लाह ने दूसरी जगह कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को इस महीने की लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने की तारीफ क्यों की, दीगर महीनों के अलावा अल्लाह ने रमज़ान के महीने को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा क्यों दिया? इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी तफसीर के अंदर लिखते हैं यमदहुल्लाहु तआला शहर सियाम मिन बैनि साइर शुहूर, अल्लाह ने दीगर महीनों के अलावा रमज़ान की तारीफ क्यों की, उसकी मदह सराई क्यों की? बिअन इख्तारहु मिन बैनिहिन्नल इंज़ालिल कुरानिल अज़ीम, क्योंकि अल्लाह ने इस महीने में अपने सबसे महबूब और सबसे अफजल कलाम को इस महीने में नाजिल किया। इस बुनियाद पर अल्लाह ने रमज़ान को ये मकाम और ये मर्तबा दिया और अल्लाह ने रमज़ान के महीने की तारीफ बयान की क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ है। तो गोया कि कुरान का माह रमज़ान से या रमज़ान का कुरान से इतना गहरा ताल्लुक है, अगर किसी एक को हमने एक से अलग कर दिया तो गोया कि हमने ना तो कुरान का हक अदा किया और ना हमने रमज़ान का हक अदा किया। मेरे भाइयों, इस महीने में कुरान की तिलावत कसरत से करो। ये सबसे अफजल नेकियों में से, सबसे अफजल इबादतों में से माह रमज़ान की एक इबादत कुरान की तिलावत है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास व कान अजवदु मा यकूनु फी रमज़ान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी और फय्याद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा नेकियां और सदकात और खैरात करने वाले थे, सबसे बढ़ चढ़ कर अल्लाह की इबादत करने वाले थे। और आपकी ये जोदो सखा, आपकी ये फय्यादी, आपका ये नेकियों में सबकत करना रमज़ान के महीने में और ज्यादा हो जाता था। बल्कि कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब रमज़ान में जिब्रील आपसे मुलाकात करते थे और जिब्रील की मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान में हर रात को होती थी। हर रात जिब्रील आकर अल्लाह के रसूल से मुलाकात करते थे। क्या करते थे मुलाकात करके? फयुदारिसुहुल कुरान, कुरान का मुदारसा करते थे। अल्लाह के रसूल जिब्रील को, जिब्रील अल्लाह के रसूल को एक दूसरे को कुरान सुनाते थे, कुरान पढ़ते थे। ये नहीं नफिल नमाजों में मशगूल हो जाते थे, ये नहीं किसी और इबादत में। फयुदारिसुहु अल कुरान, अल्लाह के रसूल जिब्रील कुरान का मुदारसा मुताला करते थे,
कुरान को पढ़ते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास इबादत रमजान के महीने में होती थी। आपको मैं बतलाऊं, सलफ़े सालिहीन की अगर कुरान की तिलावत का अंदाजा लगाना हो, इमाम मालिक इब्न अनस रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता। इमाम दारिल हिजरा जिनका लक़ब है, पूरी दुनिया के लोग इमाम मालिक रहमहुल्लाह से हदीस का इल्म हासिल करने के लिए मदीना जाते थे, मस्जिद नबवी में हाज़िरी देते थे। ये वो इमाम मालिक हैं जो हदीस का दर्स मस्जिद नबवी में बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बगल में बैठकर हदीस का दर्स दिया करते थे। और हदीस का दर्स देना इनको इतना महबूब था कि जब भी हदीस का दर्स शुरू करना होता था, पहले गुस्ल करते, अच्छा कपड़ा पहनते, खुशबू लगाते और जाकर अदब से हदीस की तालीम पूरी दुनिया के लोगों को देते थे। लेकिन जब रमजान का महीना शुरू हो जाता, इमाम मालिक जब रमजान में दाखिल हो जाते, सारी नफली इबादतों को छोड़ देते। यफिर्रु मिनल हदीस सुनने और सुनाने को छोड़ देते थे। व मिन मुजालसति अहलिल इल्म की मजलिसों में बैठना, लोगों को इल्म सिखाना, ये सारी मजलिसें आप बर्खास्त कर देते थे। व अक़बल अला तिलावतिल कुरान, हदीसों का दर्स छोड़ देते थे, अहले इल्म की मजलिसों को छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? व अक़बल अला तिलावतिल कुरान, सिर्फ कुरान की तिलावत करने के लिए अपने आप को हर चीज से फारिग कर लेते थे ताकि वो कुरान की तिलावत कर सकें। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ाना ये भी इबादत है, ये भी नेक काम है, ये भी अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। लेकिन रमजान में कुरान से वो लगाव है, कुरान का रमजान से वो ताल्लुक है कि आप नबी की हदीसों को भी पढ़ाना छोड़ देते थे, अहले इल्म की मजलिसों को खत्म कर देते थे। आप सिर्फ कुरान की तिलावत पर लग जाते थे, सिर्फ कुरान की तिलावत के लिए अपना पूरा वक्त सर्फ करते थे। यही सुफियान सौरी हैं जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस भी कहा जाता है। कहते हैं इज़ा दखला रमजान, जब रमजान का महीना शुरू होता, रमजान में ये दाखिल होते, कहते हैं तराक जमी अल इबादात, सारी नफली इबादतों को छोड़ देते। व अक़बल अला तिलावतिल कुरान, और सिर्फ कुरान की तिलावत करते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है, ये हमारे सलफ़े सालिहीन का हाल है। जरा देखिए रमजान में कुरान से कैसा ताल्लुक इनका था, कितना गहरा रिश्ता इनका कुरान से रमजान के महीने में होता था कि सारी दीगर नफली नेकियों और इबादतों को छोड़कर कुरान की तिलावत पर लग जाते थे। कहा जाता है इमाम ज़ुहरी रहमुल्लाह के ताल्लुक से, वो कुरान तो खुद पढ़ते, लोगों को भी तालीम देते थे। इन्नमा हुआ तिलावतुल कुरान, ये महीना कुरान की तिलावत का महीना है, ये महीना कुरान पढ़ने का महीना है, ये महीना कुरान खत्म करने का महीना है और लोगों को खाना खिलाने का महीना है। इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल को कौन नहीं जानता, जिन्होंने ऐसी किताब तसनीफ की जो कुरान के बाद सबसे सही किताब शुमार की जाती है। इमाम बुखारी के ताल्लुक से आता है, कि रमजान के हर दिन एक कुरान खत्म करते थे और हर 3 रात में एक कुरान खत्म करते थे। रमजान के हर दिन एक कुरान आप खत्म करते थे और रातों का जहां तक मसला रहा तो 3 रात में एक कुरान खत्म करते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह को कौन नहीं जानता। इमाम शाफी मोहम्मद बिन इदरीस जो हाशमी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से आते हैं। इमाम शाफी रहमुल्लाह वो इमाम है। कहते हैं इनके ताल्लुक से इनके शागिर्द इमाम शाफी रोजाना 24 घंटे में 2-2 कुरान खत्म किया करते थे। दिन में एक कुरान मुकम्मल करते और रात में भी एक कुरान मुकम्मल किया करते थे। ये सलफ का हाल है, ये सलफ की तिलावत है, ये सलफ का लगाव और ताल्लुक है कुरान से रमजान के महीने में कि दिन में कुरान खत्म होता था, रात में कुरान खत्म होती थी। सईद बिन जुबैर रहमुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि हर 2 रात में एक कुरान आप पढ़ा करते थे, हर 2 रात में कुरान पढ़ा करते थे। अगर मैं सलफ़े सालिहीन की बातों को अगर तूल दो तो ये खुतबे जुमा काफी नहीं होगा। बेशुमार सलफ के ताल्लुक से आता है
کہ وہ ہر دن ایک قرآن کو ختم کرتے، ہر 2 دن میں قرآن ختم کرتے، ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ سلف صالحین کا ہے کہ ایک مہینے میں 60 قرآن ان کا ختم ہوتا تھا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخر وہ سلف کے لیے کوئی نیا دن رہتا تھا، کوئی خاص دن، کوئی خاص رات رہتی تھی کیا؟ ان کے لیے رات 24 گھنٹے کی نہیں، 48 اور 52 گھنٹے کی ہوتی تھی؟ نہیں، یہی رات ہے، یہی دن ہے، یہی وقت ہے، جو ان کو وقت جو ملا تھا وہی وقت ہم کو بھی ملا ہے۔ آخر ہمارا ایک پارہ بھی رمضان کے ایک دن میں ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ہم قرآن کی ایک سورہ بھی ختم نہیں کر پاتے ہیں؟ کیا تعلق ہے ہمارا قرآن سے؟ کیا رشتہ ہے ہمارا قرآن سے؟ کیا تعلق ہے ہمارا رمضان سے؟ ہم رمضان کی کتنی قدر کر رہے ہیں؟ ہم رمضان کے ختم ہونے کی کتنی فکر کر رہے ہیں؟ ہم کو کوئی فکر نہیں ہے رمضان کی، ہم کو کوئی قدر نہیں ہے۔ جس طرح 11 مہینوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے، اس مہینے میں بھی ہماری زندگی ویسے کی ویسے ہی ہے، کوئی تبدیلی ہماری زندگی نہیں آئی ہے۔ میرے بھائیوں، تبدیلی لانا پڑے گی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کل قیامت کے دن رب العالمین کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو رمضان کی قدر کرنی پڑے گی، رمضان کا احترام کرنا پڑے گا، رمضان کے تقدس کو برقرار رکھنا پڑے گا، ورنہ نبی کی حدیث میں نے ابھی سنائی، جو اپنے گناہوں کی مغفرت رمضان کا مہینہ پا کر بھی نہ کر سکے، وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، وہ انسان اللہ کی نظر رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ اے لوگو رمضان کی قدر کر لو۔ یہ جو بقیہ ایام ہے، اگر ہماری ابتدا اور شروعات اچھی نہیں ہوئی ہے، ہم نے صحیح طور پر رمضان کا استقبال نہیں کیا ہے، تو یہ بقیہ جو ایام ہے ابھی ان کی قدر کر لو، ابھی ہوش کے ناخن لو، ابھی ہوش میں آؤ۔ یہ 20 ایام، یہ 18-20 ایام جو ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ رمضان کی قدر کرنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرو، ورنہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا اور ہم ایسے ہی ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ آپ کو بتلاؤں، یہ مہینے کو جو عظمت، یہ مہینے کو جو مقام، یہ مہینے کو جو مرتبہ ملا، رب العالمین کے کلام کی وجہ سے ملا۔ آپ دیکھیے قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیے، آپ قرآن کے مقام و مرتبے کے بارے میں سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن جس رسول کے ذریعہ نازل کیا، وہ روح الامین سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار ٹھہرا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل کیا گیا، وہ سید الانبیاء امام المرسلین ٹھہرا، وہ سارے انبیاء کا سردار، سارے انبیاء کا امام کہلایا۔ یہ قرآن کی عظمت کا کیا کہنا، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا۔ یہ قرآن کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس رات کو قرار دے دیا گیا۔ یہ مہینہ، یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا، اس کو بلدین حریمین شریفین کے نام سے جانے لگا۔ پوری دنیا میں سب سے مقدس جگہ جو اگر ہے تو وہ مدینہ اور مکہ ہے، وہ حرمین ہے۔ کیونکہ یہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے کو عظمت قرآن کی وجہ سے ملی، لیلۃ القدر کی عظمت قرآن کی وجہ سے ملی، اور جبریل امین کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا سید الملائکہ، قرآن کی وجہ سے ملا۔ امام الانبیاء کو سید المرسلین کا خطاب ملا، قرآن آپ پر نازل ہوا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، قرآن کا تعلق جس سے بھی ہوا، وہ اعظم ہو گیا، وہ افضل ہو گیا، وہ امام بن گیا، وہ سردار بن گیا، وہ سب سے افضل مہینہ، سب سے افضل رات بن گئی۔ ہمارا بھی تعلق اگر قرآن سے مضبوط ہوا، ہم بھی اگر قرآن سے لگاؤ رکھیں گے، جتنا رشتہ ہمارا قرآن سے گہرا اور مضبوط ہوگا، اللہ کی قسم، اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام اتنا بڑا ہوگا، اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام اتنا اونچا ہوگا۔ لیکن قرآن سے اگر ہم نے دوری اختیار کی، قرآن سے ہم نے روگردانی کی، تو یہ سمجھ لیجئے اللہ اگر ہمارا مقام بھی 7 آسمانوں کے اوپر تھا، تو ہم زمین کے دلدل میں چلے جائیں گے، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔
कुरान से जितना ताल्लुक मजबूत होगा, जितना गहरा रिश्ता होगा, अल्लाह की निगाह में हमारी उतनी कद्र होगी, अल्लाह की निगाह में हम उतने अल्लाह के महबूब बंदे बनेंगे। लेकिन कुरान से रिश्ता तोड़ा, कुरान से दूरी इख्तियार की तो अंजाम यह होगा कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे, अल्लाह की जन्नत से दूर हो जाओगे, अल्लाह की रहमतों और बरकतों से दूर हो जाओगे। मेरे भाइयों, इस महीने में कुरान को लाजिम पकड़ो, इस महीने में कुरान को लाजिम पकड़ो। इस महीने की कद्र करते हुए कम से कम रोजाना एक पारा की तो तिलावत कर लो। आखिर आपको यही वो नौजवान है, यही वो मुसलमान है जिनको व्हाट्सएप का हर मैसेज पढ़ना जरूरी होता है। लाखों हजारों सैकड़ों मैसेज आप व्हाट्सएप पर पढ़ लेते हैं, लेकिन आप एक पारा कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। यही वो नौजवान मुसलमान है जो फेसबुक पर हर मैसेज पर कमेंट करना अपना वाजिबी हक समझते हैं, हर कमेंट को पढ़ते हैं, हर मैसेज को लाइक और फॉरवर्ड और शेयर करते हैं, लेकिन कुरान के ये मैसेज नहीं पढ़ सकते, कुरान के एक एक सफ़े की तिलावत नहीं कर सकते। यही वो नौजवान है जो ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इनको बड़ा मजा आता है, लेकिन कुरान की एक सफ़ा तिलावत करने में इनको मजा नहीं आता है। अरे वो लोगों जो सोशल मीडिया पर अपना पूरा वक्त बर्बाद करते हो, लाखों हजारों मैसेजें पढ़ने वालों, क्या तुमको कुरान के 10 सफ़े की तिलावत की तौफीक नहीं मिलती? क्या तुमको कुरान के एक सूरे की तिलावत की तौफीक नहीं मिलती? आखिर हमारा ज़मीर कितना मर गया है कि हम दुनियावी चीजें तो इतनी पढ़ लेते हैं, अखबार की सुर्खियों को चाट डालते हैं, 1 से 2 मरतबा उस न्यूज को हम देखते और पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की तौफीक हमको नहीं मिलती। और कहते हो मुसलमान सताए जा रहे हैं, कहते हो मुसलमान मारे जा रहे हैं, कहते हो मुसलमान माओ बहनों की इज्जतें और इस्मतें महफूज नहीं है, कहते हो अल्लाह का घर मस्जिदें आबाद नहीं है, महफूज नहीं है, कहते हो मुसलमानों की दुकानें महफूज नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन, इसी किताब की वजह से, इसी कुरान की वजह से, इसी कलामुल्लाह की वजह से अल्लाह ने जो दुनिया में सबसे जलील थे, जो सबसे कमतर लोग थे, अल्लाह ने इस कुरान की वजह से सबसे बुलंद मर्तबा अता किया। सहाबा की जमात को देख लीजिए, सलफ़े सालिहीन की जमात को देख लीजिए, इस किताब से उनका ताल्लुक इतना मजबूत था कि अल्लाह ने पूरी दुनिया पर उनको हुक्मरानी दी, पूरी दुनिया पर उनको गलबा दिया, पूरी दुनिया पर उनकी इस्लामी हुकूमत चलती थी, उनके फतुहात होती थी। इस किताब की वजह से अल्लाह ने वो मकाम उनको दिया था। ये मेरे नबी की हदीस है, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामा, इस किताब की वजह से, इस कलाम की वजह से, इस कुरान की वजह से अल्लाह ने चंद लोगों को औजे सुरैया पर पहुंचा दिया, वो मकाम दिया जो रहती दुनिया तक कोई हासिल नहीं कर सकता। लेकिन वयदउ बिही आखिरीन, अगर हम कुरान की कदर नहीं करेंगे, अगर हम कुरान को सुनेंगे नहीं, अगर हम कुरान को समझेंगे नहीं, अगर हम कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, अगर हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं, वयदउ बिही आखिरीन, ये किताब मुसलमान को दी गई है। मुसलमान अगर ये किताब छोड़ देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनको जलील और रुसवा कर दिया जाएगा, उनको दलदल और जमीन के अंदर उनको धंसा दिया जाएगा। ये कुरान की आदमत है कि कुरान की वजह से बुलंदी मिलती है, और कुरान का हक अदा ना करने की वजह से वो इंसान कितना ही बड़ा मालदार क्यों ना हो, वो इंसान कितने बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो, लेकिन कुरान से दूरी इख्तियार की, कुरान को छोड़ा, कुरान से लगाव नहीं रखा, तो वो ओहदा उसका कोई काम का नहीं है, वो दौलत उसकी कोई काम की नहीं है, वो इज्जत और शराफत जो माशरे में उसको मिली है अल्लाह की निगाह में कोई हैसियत नहीं रखती। वयदउ बिही आखिरीन, इसी कुरान की वजह से बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने जमीन के दलदल में फंसा दिया। इस कुरान की कदर कर लो मेरे भाइयों, खासतौर पर रमजान में कम से कम एक पारा की तिलावत करो, एक पारे की तिलावत करो। अगर अजान होते ही आप मस्जिद में हाजिरी दें, 4 रकात 2 रकात जो भी सुन्नत है पढ़ें, आप 4 सफा हर नमाज से पहले पढ़ें, हाँ, और 4 सफा हर नमाज के बाद पढ़ें, तो इस तरह आपकी एक दिन में एक पारे की तिलावत मुकम्मल हो जाती है आसानी के साथ। आप ज्यादा एक वक्त बैठकर एक पारे की तिलावत नहीं कर सकते, मानता हूं आपको बड़ी मसरूफियात है, आपको रमजान से उतना लगाव नहीं है जितना आपको दुनिया से लगाव है, आपको आखिरत की उतनी फिक्र नहीं है जितनी दुनिया की फिक्र आपको है। तो कम से कम ये तो तय कर लीजिए कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने आइए, अजान से 5 मिनट पहले आइए, आप 4 सफ़े की तिलावत नमाज से पहले करें, 4 सफ़े की तिलावत नमाज के बाद करें। इसी तरह 5 वक्ता नमाजों में अगर आप करेंगे तो आपकी एक पारे की तिलावत रोजाना मुकम्मल हो
हो जाएगी। कम से कम एक मरतबा कुरान की तिलावत तो ख़त्म करो, कम से कम एक ख़त्मा तो तैयार करो। आखिर अल्लाह के सामने कैसा मुंह लेकर जाओगे। इस महीने में जो सबसे अफजल इबादतों में से एक इबादत कुरान की तिलावत है, हमारी 10 पारे की भी तिलावत नहीं होती है, एक कुरान भी हमारा ख़त्म नहीं होता है। कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान तो रमज़ान में भी नहीं उठाते हैं। सच कहा है किसी शायर ने, ताकों में सजाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान व हरीर व रेशम के कपड़ों में सजाया जाता हूँ। यह हकीकत है, ये हकीकत है। एक टीचर ने, एक उस्ताद ने अपने स्टूडेंट्स और तलबा को कहा कि आपके घर में जो एक ऐसी किताब हर कोई अपने घर से लाएगा जो आपके घर में सबसे कम पढ़ी जाती है या पढ़ी ही नहीं जाती है। अगले दिन सारे बच्चे जब किताब लेके आते हैं, उस्ताद देखता है सारे के सारे बच्चे कुरान का मुसहफ लेके आए हुए, मुसहफ लेके आए हुए हैं। उस्ताद ने सवाल किया, आखिर सब लोग मुसहफ क्यों लेकर आए हो? बच्चों ने जवाब दिया, ये वो किताब जो सबसे मजलूम किताब हमारे घरों में है, इस किताब को कभी नहीं हमारे घर वाले, हमारे वालिदैन, हमारे भाई उठाते। ये किताब कभी खोली ही नहीं जाती। अगर खोली गई तो तबर्रुक के लिए, अगर खोली गई, अगर कुरान को उठाया गया है तो हलफ उठाने के लिए, कसम लेने के लिए, अगर उठाया गया है तो चूमने के लिए, अगर कभी उठाया गया है तो इतर लगाने के लिए, तावीज़ बनाने के लिए, रुक़या करने के लिए, झाड़ फूक करने के लिए, लेकिन कुरान की तिलावत करने के लिए, कुरान समझने के लिए, कुरान में तदब्बुर करने के लिए कुरान नहीं उठाया जाता। सारे बच्चों ने, सारे तलबा ने कुरान उस मदरसे में लेकर आए, कहा यह हमारे घर की वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जाती, कभी नहीं खोली जाती। आज भी मुसलमानों का यह हाल है। ये मस्जिद में मुसहफ रखे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितना मजलूम है ये कुरान, कितनी मजलूम है ये किताब। हम तो इंग्लिश की कई कई किताबें पढ़ लेते हैं, हम तो फला फला जुबान की कई कई किताबें दुनियावी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। ऐ वो मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी? कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी? कहाँ से हमारी इज्जत व आबरू महफूज होगी? कहाँ से हमारी जायदाद, दुकानें, हमारे घर कहाँ से आबाद होंगे? कहाँ से इज्जतें, इस्मतें महफूज होंगी? कहाँ से मुसलमानों को खून की अहमियत होगी? जब हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली, हमने अल्लाह के कलाम से दूरी इख्तियार कर ली, हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली, रब से दूर होंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह खुद हमको अपनी रहमत से दूर कर देगा। हाज़िरीन गिरामी, तो मैं ये कह रहा था कि ये महीना कुरान का महीना है, ये महीना कुरान की तिलावत का महीना है। सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगी को देखिए, उनकी हालतों को देखिए, कुछ तो सबक लीजिए, कुछ तो सबक लीजिए अपने सलफ़ सालिहीन से। हमारे सलफ़ सालिहीन अगर महीने में 60 मरतबा कुरान ख़त्म करते थे तो कम से कम एक महीने में एक कुरान तो हम ख़त्म कर लें, एक कुरान तो ख़त्म कर लें। रोज़ाना कुरान पढ़ने की कोशिश करें। अरे वो कितने बदनसीब वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को तो बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवा देते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेज़ों की ज़ुबान तो सिखा देते हैं, अपनी मादुरी ज़ुबान तो सिखा देते हैं, लेकिन जन्नत की ज़ुबान, अल्लाह की ज़ुबान और अंबिया की जो ज़ुबान है, कुरान की जो ज़ुबान है, वो नहीं सिखा पाते। इनको इंग्लिश सिखाने के लिए, फुला दुनियावी तालीम दिलवाने के लिए अपने बच्चों की रोजाना शाम को गिरफ्त करते हैं। होमवर्क किया कि नहीं किया, लिखा कि नहीं लिखा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कभी किसी वालिदैन ने अपने बच्चों को इस पर डांट पिलाई है? कभी गिरफ्त की है? कभी उससे पूछताछ की है कि आज कुरान की कितने पारे की तिलावत की, कितने सफ़े की तुमने तिलावत की? ये वालिदैन है, अल्लाह की कसम, रब की बारगाह में सबसे पहले इन्हीं वालिदैन की गिरफ्त होगी। सबसे पहले रब्बुल आलमीन इनका गिरेबान पकड़कर इनसे सवाल करेगा, तुमने अपने बच्चे की तरबियत कैसे की? क्या तुमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाई जिस तरह तुम अंग्रेजी की तालीम दिलवाया करते थे, जिस तरह तुम तेलुगु की तालीम दिलवाया करते थे, जिस तरह तुम साइंस की तालीम दिलवाया करते थे, जितना रुपया पैसा उनके ट्यूशन पर, उनकी तालीम पर खर्च किया करते थे, क्या उसका आधा फीसद भी कुरान की तालीम पर तुमने सर्फ किया? ये अंग्रेजी ये दुनियावी तालीम की ट्यूशन के लिए हजारों लाखों खर्च करते हैं, लेकिन एक हाफिज साहब को महीने में 300 देना इनको भारी पड़ता है, क्योंकि वो कुरान सिखा रहा है। कुरान की अहमियत इनके निगाह में कुछ नहीं, कुछ नहीं। 3000 4000 दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए आप सर्फ करते हैं, आप ले जाके छोड़ते हैं वहां स्कूल में,
आप ट्यूशन की जगह पर ले जाकर अपने बच्चे को बिठा के आते हैं, लेकिन कुरान की तालीम दिलवाने के लिए आपके पास कोई वक्त नहीं, आपके पास कोई रुपया नहीं, आपके पास कोई दौलत नहीं। 300-400 रुपया देने में नानी याद आ जाती है ऐसे लोगों की कुरान की तालीम दिलवाने के लिए। इनकी निगाह में जरा देखिए कि कुरान की क्या हैसियत है, कुरान का क्या मकाम है। यह अंग्रेजों की जुबान से गई गुजरी है, मुसलमानों की निगाहों में कुरान की तालीम। या अगर आज आप कुरान की तालीम अपने बच्चों को नहीं दिलवाएंगे, अल्लाह की कसम, कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, कल क़यामत के दिन यही बच्चे आपके गिरबान पकड़कर रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहेंगे, यह है मेरे माँ बाप, मुझे कुरान नहीं सिखाया, मुझे दीनी तरबियत नहीं दी। अल्लाह की कसम, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा, आपने अंग्रेजी की तालीम अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलवाई, साइंस की तालीम क्यों नहीं दिलवाई, क्यों आपने डॉक्टर नहीं बनाया, क्यों आपने इंजीनियर नहीं बनाया। लेकिन रब्बुल आलमीन आपकी गिरबान पकड़कर इस बात पर जरूर सवाल पूछेगा कि आपने दीन की तालीम अपने बच्चों को क्यों नहीं दी, कुरान की तालीम अपने बच्चे को क्यों नहीं दी, कुरान दीनी तरबियत अपने बच्चे को क्यों नहीं दी। रब्बुल आलमीन यही सवाल करेगा। और यही बच्चे जिस पर आप दुनिया का पैसा खर्च कर रहे हो दुनियावी तालीम के लिए, यही बच्चे आपका गिरबान पकड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर करेंगे। यही मेरे बाप है, दुनियावी तालीम के लिए सब कुछ इनके लिए था, वक्त था, पैसा था, हर कुछ था इनके पास, लेकिन दीन की तालीम दिलवाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने, क्या अल्लाह को जवाब देंगे, जरा बतलाइए। अल्लाह को क्या मुंह लेकर अल्लाह के पास लेकर जाएंगे। जरूरत इस बात की है, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, कुरान से लगाव रखो, कुरान से अपना रिश्ता गहरा और मजबूत बनाओ। अल्लाह की कसम, अगर आज भी मुसलमानों का कुरान से ताल्लुक मजबूत हो गया, आज भी मुसलमान पूरी दुनिया पर गालिब हो सकते हैं, आज भी मुसलमानों को हुकूमत, सल्तनत, बादशाहत मिल सकती है, आज भी मुसलमान इज्जत की निगाह से देखे जाएंगे। शर्त यह है, कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए था। अल्लामा इकबाल ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। वो कुरान की वजह से मुअज़्ज़ज़ थे, और आज हम ज़लील व ख्वार हैं, मजलूम हैं, मजबूर हैं। क्यों? कुरान छोड़ने की वजह से। ज़रूरत इस बात की है, कुरान से ताल्लुक मजबूत बनाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को कुरान सीखने, कुरान सिखाने, कुरान पढ़ने, कुरान पढ़ाने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ये बकिया जो रमज़ान के अय्याम है, अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कदर करने, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेक आमाल और अल्लाह नेक इबादतें अंजाम देने की हमको तौफीक अता फरमा। जब तक ज़िंदगी दे, किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।